زیر زمین عظیم الشان سمندر کی دریافت ایک اہم سائنسی دریافت ہے۔ اس دریافت نے کرۂ ارض کے اندرون کے متعلق احادیث مبارکہ کے بیانات کی مکمل طور پر تصدیق کر دی ہے۔ لہذا اوپر احادیث اور جدید جیولوجیائی تحقیقات کے درمیان جو تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا، اس کا خلاصہ یوں ہے کہ ہمارے سمندر، جن کی اوسط گہرائی تقریباً 4 کلومیٹر ہے، اس کے نیچے آتش فشاں اور آتش فشانی لاوے کی 22 تہیں پائی جاتی ہیں۔ ان کے نیچے غلاف ارض یعنی مینٹل میں ہمارے سمندر سے تقریباً 3 گنا بڑا سمندر پایا جاتا ہے، اور اس کے نیچے خارجی مرکز یعنی آؤٹر کور میں بے کراں آگ کا سمندر پایا جاتا ہے۔ لہذا یہ تمام حقائق سمندر کے نیچے آگ، آگ کے نیچے سمندر اور پھر اس دوسرے سمندر کے نیچے آگ کی بہترین تشریح پیش کر رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین، آج کا موضوع گفتگو ہے زیر زمین عظیم الشان سمندر کی دریافت، احادیث اور جدید سائنسی تحقیقات کی روشنی میں۔ جون سن 2014 میں سائنسدانوں نے کرۂ ارض کے سلسلے میں ایک اہم دریافت پیش کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا کہ انہوں نے زمین کی بے انتہا گہرائیوں میں یعنی کرۂ ارض کے غلاف یعنی کرسٹ میں عظیم الشان سمندروں کے موجود ہونے کا پتہ لگا لیا ہے، جو کرۂ ارض کے سمندروں کے حجم سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے۔ کرۂ ارض کے سمندروں میں 133 کروڑ 50 لاکھ کیوبک کلومیٹر پانی پایا جاتا ہے، مگر سائنسدانوں نے جو نیا سمندر دریافت کیا ہے، اس میں سمندر سے 3 گنا زیادہ پانی پایا جاتا ہے۔ ایک انتہائی اہم سائنسی تحقیق ہے جو سائنسی دنیا کے لیے چونکا دینے والی تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر اسلامی فکر و فلسفے کی دنیا میں بھی خاصی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے اسلامی فلسفے کائنات کے کئی اہم راز فاش ہوتے ہیں اور اس کی صداقت پر نئے دلائل فراہم ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ نئی تحقیق زمین کی تخلیق کے کئی اہم رازوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ ان کے مطابق یہ تحقیق کرۂ ارض کے تشکیل پانے کے نظریے کو یکسر بدل کر رکھ دے گی۔ اسلامی نقطہ نظر سے اس جدید سائنسی تحقیق کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا اس زیر زمین سمندر کا محل وقوع کے تعلق سے، اور دوسرا اس زیر زمین سمندر کا ہمارے سمندری پانی کے ماخذ ہونے کے تعلق سے۔ لہذا ہم یہاں ان دونوں پہلوؤں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں بحث پیش کریں گے۔ زیر زمین سمندر کا تذکرہ احادیث میں۔ اس سلسلے کا پہلا نقطہ اس زیر زمین سمندر کا نفس وجود اور اس کا محل وقوع ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس کے موجود ہونے کی پیشین گوئی واضح طور پر احادیث میں وارد ہوئی ہے، لہذا اس سلسلے میں وارد بعض روایات حسب ذیل ہیں۔ عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے سمندر۔ دوسری حدیث ہے عن عبداللہ بن عمرو قال ان تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا، یعنی عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، پھر پانی ہے اور پھر آگ ہے۔ یہ دونوں احادیث اپنی معنویت میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں۔ پہلی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے سمندروں کے نیچے آگ ہے اور پھر اس آگ کے نیچے سمندر ہے، جبکہ دوسری حدیث میں اس میں ایک اور اضافہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، آگ کے نیچے پھر سمندر ہے اور پھر دوسرے سمندر کے نیچے آگ ہے۔ ہمارے کرۂ ارض کے اندرون کے متعلق احادیث نبوی کے یہ انکشافات اس دور کے ہیں جبکہ انسان ان حقائق سے کلی طور پر ناواقف تھا کہ کرۂ ارض پر نظر آنے والے سمندر اپنے اندر کیا کچھ سموئے ہوئے ہیں، ان کی گہرائی کتنی ہے، سمندری فرش کے خصائص اور اس کا جغرافیہ کیا ہے۔ ان حقائق سے دور رسالت کے لوگ ہی نہیں بلکہ 20ویں صدی تک انسان کلی طور پر ان سے ناواقف تھا۔ اس سلسلے کی تمام تحقیقات 20ویں اور 21ویں صدی کی ہیں، لہذا ہم یہاں مختصراً اس پر بحث پیش کریں گے۔ سمندر کے نیچے آگ۔ سمندر کرۂ ارض کے تقریباً 70% حصے کو گھیرے ہوئے ہے، جبکہ اس کا بقیہ تقریباً 30% رقبہ بر اعظمی حصے پر مشتمل ہے۔ مگر روئے زمین پر پائے جانے والے یہ سمندر کتنے گہرے ہیں اور ان کے نیچے کیا کچھ موجود ہے، ان سوالوں کے جوابات سے جس طرح قدیم انسان ناواقف تھا،
इसी तरह दौर हाजिर का इंसान भी मादी करीब तक तकरीबन इससे नाबलग था। इसके मुतालिक अब भी इंसान की मालूमात इंतहाई महदूद और नाकाफ़ी हैं, इसलिए कि सिर्फ चंद सौ या हज़ार मीटर की गहराई के बाद समंदरी हिस्सा इंसान के बिलावास्ता यानी डायरेक्ट तजुर्बे और मुशाहदे से परे है। लिहाजा समंदर की गहराइयों और उसमें मौजूद अशिया के मुतालिक इंसान का ज़्यादातर इल्म आज भी बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट है। 19वीं सदी में साइंसदानों ने पहली मरतबा क़यास व अंदाजे से समंदरों की औसत गहराई का पता लगाया कि वह तकरीबन 4 किलोमीटर है। इसकी तस्दीक 20वीं सदी की सोनार टेक्नोलॉजी के ज़रिए की गई। सोनार टेक्नोलॉजी यानी वो टेक्नोलॉजी जिसमें आवाज़ की लहरों के ज़रिए गहरे समंदरों का मुताला किया जाता है। इसके ज़रिए पहली मरतबा इंसान ने 20वीं सदी में समंदरी फ़र्श का मुताला किया तो पता चला कि सारा समंदरी फ़र्श आतिशफ़शानीउल अस्ल लावे से तश्कील पाया है। इसके बाद की मज़ीद तहक़ीक़ात से पता चला कि पूरे समंदरी फ़र्श पर ज़ेर आब आतिशफ़शानी सरगर्मियाँ मुस्तकिल तौर पर जारी हैं, जो समंदरी पानी के बेइंतहा वज़न तले दबकर वहीं रह जाते हैं और सतह समंदर के ऊपर नमूदार नहीं होते। लिहाजा एक अंदाजे के मुताबिक समंदरी फ़र्श पर 10 लाख यानी 1 मिलियन आतिशफ़शां सरगर्म अमल हैं, जिनमें तकरीबन 75,000 समंदरी फ़र्श पर 1 किलोमीटर से ज़ायद तक बुलंद होते हैं। इस तरह पूरा समंदरी फ़र्श दहकते हुए लावा से तश्कील पाया है और वो अब भी मुस्तकिल तौर पर तश्कील पा रहा है। 20वीं सदी की इन साइंसी तहक़ीक़ात से मज़कूर बाला अहादीस के इस फ़िक़्रे की तशरीह व तफ़सीर बखूबी हो जाती है कि हमारे समंदरों के नीचे आग है। अब हम इसके अगले टुकड़े को समझने की कोशिश करेंगे। कुर्रे अर्ज़ का दाखिली ढांचा। क़ब्ल इसके कि हम इस हदीस के अगले फ़िक़्रे की तरफ बढ़ें, इसको समझने के लिए कुर्रे अर्ज़ के अंदरून यानी इंटीरियर पर एक नज़र डालनी ज़रूरी है। माहिरीन अर्ज़ियात कुर्रे अर्ज़ के अंदरून को 4 परतों यानी लेयर्स में बांटते हैं। कुर्रे अर्ज़ की सबसे ऊपरी परत क़िश्र अर्ज़ यानी क्रस्ट है, जो ठोस चट्टानी है और सतह ज़मीन से 50 किलोमीटर गहरी है। इसके ऊपरी हिस्से पर बर-ए-आज़म और समंदर वाक़ हैं। क़िश्र अर्ज़ में गहराई में इजाफे के साथ साथ इसके दर्जे हरारत में भी इजाफा होता चला गया है। लिहाजा क़िश्र अर्ज़ की इंतहाई अमीक़ चट्टान का दर्जे हरारत 870 डिग्री सेल्सियस को पहुँच गया है। क़िश्र अर्ज़ के नीचे क्या है, इसके मुतालिक इंसान बिलावास्ता यानी डायरेक्ट तौर पर नहीं जानता, अलबत्ता उसने बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट तौर पर जैसे दलदलियाती लहरों के मुताले के ज़रिए इसका पता लगाया है। लिहाजा इसके मुताबिक क़िश्र अर्ज़ के नीचे तकरीबन 2890 किलोमीटर तक ग़िलाफ़ अर्ज़ यानी मैंटल का हिस्सा फैला हुआ है। ग़िलाफ़ अर्ज़ ठोस चट्टानी है। इसका इंतहाई दर्जे हरारत 870 डिग्री से शुरू होकर 4400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका है। इसके नीचे खारजी मरकज़ यानी आउटर कोर है, जो 2400 किलोमीटर मोटा है और यहाँ का मुंतहा दर्जे हरारत 4500 डिग्री सेल्सियस है और ये माए और सयाल शक्ल में है। समंदरी फ़र्श पर उमंड आने वाला सयाल लावे का माखज़ यही खारजी मरकज़ है। कुर्रे अर्ज़ की आखिरी परत दाखिली मरकज़ यानी इनर कोर है, जो 1300 किलोमीटर मोटी है और यहाँ का इंतहाई दर्जे हरारत 7000 डिग्री सेल्सियस है। दाखिली मरकज़ इंतहाई ठोस तस्वर किया जाता है। आग के नीचे समंदर। कुर्रे अर्ज़ पर ज़ेर ज़मीन जो समंदर दरियाफ्त हुए हैं, उनका महल वक़ू ग़िलाफ़ अर्ज़ यानी मैंटल है। जैसा कि ऊपर बयान किया गया कि ग़िलाफ़ अर्ज़ अब तक खालिसतन चट्टानी मिंतक़ा तस्वर किया जाता था, मगर वहाँ इस अज़ीमुश्शान समंदर की दरियाफ्त ने तमाम साइंसदानों को वर्त हैरत में मुब्तला कर दिया है। इस नई तहक़ीक़ के मुताबिक कुर्रे अर्ज़ की सतह के सैकड़ों किलोमीटर नीचे ग़िलाफ़ अर्ज़ में इतना पानी महबूस है जो हमारे मारूफ समंदरों के कुल पानी का 3 गुना है। ये पानी सतह ज़मीन के तकरीबन 660 किलोमीटर यानी 400 मील नीचे एक किस्म की मादनियात जिसे रिंगोवुडाइट कहा जाता है, इसमें महफूज है, जो ग़िलाफ़ अर्ज़ में पाया जाता है। इस तहक़ीक़ को अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के स्टीव जैकोब्सन और उनके साथियों ने अंजाम दिया है। उन्होंने अपनी तहक़ीक़ के लिए अमेरिका के ज़ेर ज़मीन वसी मिंतक़े को बुनियाद बनाया। इनके मुताबिक रिंगोवुडाइट स्पंज के मानिंद होता है, जो पानी को अपने अंदर जज़्ब करने की सलाहियत रखता है। उनके मुताबिक अगर रिंगोवुडाइट में 1% भी पानी पाया जाता है तो ये पानी कुर्रे अर्ज़ के समंदरों में मौजूद कुल पानी का 3 गुना होगा। मुहक़्क़ीक़ीन ने इस हकीकत तक पहुँचने के लिए अमेरिका के दलदलियाती लहरों के रिकॉर्ड्स का मुताला किया और उस पर तजुर्बा गाहों में मुख्तलिफ तजुर्बे किए। इन तजुर्बों के ज़रिए वो इस नतीजे पर पहुँचे कि
सतह ज़मीन से सैकड़ों किलोमीटर नीचे चट्टानों के पिघलने और उनकी हरकत पजीरी की बिना पर पानी इन चट्टानों में जज्ब होकर मुक़य्यद हो गया। बहरहाल इन तहक़ीक़ात से ये बखूबी साबित हो गया कि ख़िलाफ़ अर्ज़ जो अब तक ठोस और चट्टानी तस्वुर किया जाता था, इसमें बेइंतहा तौर पर कसीर मक़दार में पानी मौजूद है। इस तरह अहादीस में मज़कूर समंदर के नीचे आग और फिर आग के नीचे समंदर के मौजूद होने की तस्दीक ठोस साइंसी शवाहिद के ज़रिए फराहम की गई है। दूसरे समंदर के नीचे आग। कुर्रे अर्ज़ के अंदरून के मुतालिक ऊपर मज़कूर दो अहादीस में पहली हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल यानी हदीस मरफू है, इसमें सिर्फ समंदर के नीचे आग और आग के नीचे समंदर होने की बात कही गई है, जबकि दूसरी हदीस जो कि कौल सहाबी यानी हदीस मौकूफ़ है, इसमें मज़ीद इसका भी तज़किरा मौजूद है कि इस दूसरे समंदर के नीचे फिर आग है। लिहाजा हम यहाँ इस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ऊपर बयान किया गया कि कुर्रे अर्ज़ के पूरे समंदरी फर्श पर मुस्तकिल तौर पर आतिशफ़शानी सरगर्मियाँ जारी हैं और वहाँ ज़मीन की बेइंतहा गहराइयों से हमा वक्त लावा उमड़ कर आ रहा है। कुर्रे अर्ज़ के समंदरी फर्श पर ये लावा दरअसल कुर्रे अर्ज़ के खारजी मरकज़ यानी आउटर कोर से उमड़ आ रहा है, जो कुर्रे अर्ज़ की तीसरी परत है और ग़िलाफ़ अर्ज़ के नीचे वाक़ है। ये खारजी मरकज़ दरअसल बेइंतहा गर्म आग का एक समंदर है जो सतह ज़मीन से 2890 और 5150 किलोमीटर के दरमियान फैला हुआ है। इसका दर्जा हरारत इसके ऊपरी हिस्से से 4230 डिग्री सेल्सियस से लेकर उसके आखिरी इंतहा तक 7730 डिग्री सेल्सियस तक चला गया है। कुर्रे अर्ज़ के अंदरून का इतना बड़ा और वसी हिस्सा खौलते हुए लावा पर मुश्तमल है जो सयाल शक्ल में है। यही लावा ठोस ग़िलाफ़ अर्ज़ और क़िश्र अर्ज़ में मौजूद शगाफ़ों के ज़रिए कुर्रे अर्ज़ के समंदरों और बर्र आज़मों पर आतिशफ़शां के फटने की शक्ल में नमूदार होता है। खुलासा ये कि ज़ेर ज़मीन अज़ीमुश्शान समंदर की दरियाफ़्त एक अहम साइंसी दरियाफ़्त है। इस दरियाफ़्त ने कुर्रे अर्ज़ के अंदरून के मुतालिक अहादीस मुबारका के बयानात की मुकम्मल तौर पर तस्दीक कर दी है। लिहाजा ऊपर अहादीस और जदीद जियोलॉजियाई तहक़ीक़ात के दरमियान जो तक़ाबुली मुताला पेश किया गया, उसका खुलासा यूँ है कि हमारे समंदर जिनकी औसत गहराई तकरीबन 4 किलोमीटर है, उसके नीचे आतिशफ़शां और आतिशफ़शानी लावे की 20 तहें पाई जाती हैं। इनके नीचे ग़िलाफ़ अर्ज़ यानी मैंटल में हमारे समंदर से तकरीबन 3 गुना बड़ा समंदर पाया जाता है और उसके नीचे खारजी मरकज़ यानी आउटर कोर में बेकरां आग का समंदर पाया जाता है। लिहाजा ये तमाम हक़ायक़ समंदर के नीचे आग, आग के नीचे समंदर और फिर इस दूसरे समंदर के नीचे आग की बेहतरीन तशरीह पेश कर रहे हैं। ये तमाम जियोलॉजियाई इक्तिशाफ़ात 20वीं और 21वीं सदी की हैं। ये ऐसे हक़ायक़ हैं जिनको अगर सिर्फ चंद दहाइयों पहले तक कहा जाता तो ऐसी बातों को संजीदगी से लेना तो कुजा उनका मजाक उड़ाया जाता, मगर जदीद साइंसी तहक़ीक़ात की बदौलत अहादीस के ये तमाम बयानात और उलूम व मारिफ़ रोज़ रोशन की तरह यहाँ हो गए हैं और सारी इंसानियत को अपनी रोशनी से मुनव्वर करने की क़ुव्वत व ताक़त रखती हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।